ओके सो हमारा जो अब लेक्चर है वो शुरू होने वाला है इस टॉपिक से। और ऑलमोस्ट इस जो ये बुकलेट है सोशल इश्यूज की, तो इसके लगभग 10 पेजेस बचे हैं, 8 से 10 तक। तो यहाँ से शुरू करते हैं टॉपिक ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस, GNHRI। ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन डिफर्ड accreditation of the National Human Rights Commission. Second time in row, Gandhi deferred accreditation of National Human Rights Commission, citing objections like political interference in appointment, involving police in probes into human rights violation, poor cooperation with civil society, etc. So without the accreditation National Human Rights Commission, it will be unable to represent India at the United Nations Human Rights Council, United Nations Human Rights Council. क्राइटेरिया क्या रहेगा नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन का? अंडर पेरिस प्रिंसिपल, ब्रॉड मैंडेट, ये क्या करेगा? प्रमोट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा सारे ह्यूमन राइट्स को। ब्रॉड फंक्शन रहेगा, डिलीवर करेगा ऑन देयर मैंडेट बाय प्रोवाइडिंग एडवाइस, रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग। Independence from government set out in legislature और constitution, pluralism ensure करेगा कि कंपोजिशन जो है नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस का वो रिफ्लेक्ट करेगा सोशल फोर्सेस को जो इन्वॉल्व हैं प्रमोशन में, प्रोटेक्शन में ह्यूमन राइट्स की। adequate powers to initiate inquiries and investigation, adequate resources फंडिंग के लिए, स्टाफिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी के लिए। कोऑपरेटिव वर्क जो किसके लिए होगा? कोलैबोरेट करने के लिए होगा दूसरे स्टेट इंस्टीट्यूशन के साथ, एनजीओ के साथ, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के साथ। इंटरनेशनल इंगेजमेंट होगा ताकि जो नॉलेज है उसको कंट्रीब्यूट किया जा सके, नॉलेज और एक्सपर्टीज को इंटरनेशनल एंड रीजनल ह्यूमन राइट्स बॉडीज के साथ। ये 1993 में एस्टेब्लिश हुआ था। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी थी नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। मेंबरशिप में 120 नेशनल ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूशन है, जिसमें इंडिया का भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इसका मेंबर है। जनरल असेंबली गैंड्री सुप्रीम डिलिबरेटिव बॉडी है, रेस्पॉन्सिबल है रिव्यू करने के लिए, एक्रेडिट करने के लिए नेशनल ह्यूमन। तो यहाँ पे क्या था कि पेरिस का जो प्रिंसिपल है इट वाज अडॉप्टेड इन 1993 बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो एक्रेडिशन क्या होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का? 2016 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्रेडिशन वाज डिफर्ड बाय अ ईयर एंड लेटर इन इट्स रिकमेंडेशन in 2017 Gandhi asked the National Human Rights Commission to address its lack of diversity regarding women representatives from other marginalized social group. Amendment to Protection of Human Rights Act in 2019 sought to address these concerns. It increased members of National Human Rights Commission and made chairperson of National Commission for Backward Classes and National Commission for Protection of Child's Rights and Chief Commissioner for Persons with Disabilities deemed members of National Human Rights Commission. United Nations Permanent Forum of Indigenous Issues. Second session of UNPF 2 it was held, and UNPF 2 Genesis it was established in July 2000 by a resolution of United Nations Economic and Social Council. हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी है, यूनेस्को यूनिकोसॉक, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। मेंबरशिप 16 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है, फंक्शनिंग इन देयर पर्सनल कैपेसिटी वू सर्व फॉर अ टर्म ऑफ 3 years. 8 experts are nominated by governments and 8 are nominated directly by indigenous organization. So expert nominated by governments are elected by ECOSOC based on 5 regional groupings of state. For example, Africa, Asia, Eastern Europe, Latin America and Caribbean and Western Europe and other state. Mandate क्या हो जाता है? To deal with indigenous issues related to economic and social development, culture, the environment, education, health and human right. Activity जो है are supported by Trust Fund on indigenous issues. ये वन ऑफ 3 UN बॉडीज मैंडेटेड है जो डील करता है स्पेसिफिकली इंडिजिनस पीपल्स इश्यूज के साथ।
others two are expert mechanism on the rights of indigenous people and a special reporter on the rights of indigenous peoples. उसके बाद आता है मिसलेनियस में, तो मिसलेनियस में देखते हैं स्पोर्ट्स गवर्नेंस इन इंडिया। रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने सस्पेंड किया है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिसरिगार्ड फॉर एग्जिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। स्पोर्ट्स गवर्नेंस इन इंडिया, स्पोर्ट्स इन इंडिया आर लिस्टेड इन एंट्री 33 list 2 state list 1 of the constitution and are necessarily under the domain of the federal state. Current sports governance model in India, उसके बारे में देखते हैं। Ministry of Youth Affairs and Sports has institutions like the Sports Authority of India and other institutions working towards promoting sports training under SAI, Sports Authority of India. Indian Olympic Association has a state Olympic Association and national and state sports federations for non-Olympic sports जैसे क्रिकेट फेडरेशंस लाइक द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसको हम BCCI भी बोलते हैं, डायरेक्टली एफिलिएटेड है विद द रेस्पेक्टिव इंटरनेशनल बोर्ड। की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस के लिए? नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया 2011, लीगल स्टेटस, इसको वॉलंटरी रजिस्टर करना है बॉडी को रादर देन proprietary concern or a partnership firm. Age and tenure limit, comply करना है एज के साथ and tenure limit of 70 years for all office bearers with tenure regulations, example 12 years for president with or without break. Status and recognition must be apex body for relevant sports and recognition from relevant international or Asian federation and IOA. Sports person representation include prominent sports person as members in the organization. Internal requirements must have a written constitution, more than 3 years of existence and affiliated units in at least 2/3 of states. Office and accounts must have an office in Delhi and maintain proper accounts of all annual financial statement. Elections must conduct fair, transparent and democratic elections. इम्पार्शियल एंड ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस होनी चाहिए, रेगुलर डोपिंग टेस्ट होने चाहिए सारे प्लेयर्स के साथ, प्रिवेंट करना चाहिए एज फ्रॉड्स को, कंप्लाई करना चाहिए RTI के साथ एटसेट्रा। कास्ट सेंसस, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने रिसेंटली रिलीज करी है एक रिपोर्ट। कास्ट सर्वे जो कंडक्ट हुआ था स्टेट में, जब एक क्यों हुआ था, स्टेट लेजिस्लेचर ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, तो उसके बाद कास्ट सर्वे वहां पे हुआ। सेंसस के बारे में देखते हैं। सेंसस क्या है? यूनियन सब्जेक्ट है। एंट्री 69 ऑफ द यूनियन लिस्ट अंडर शेड्यूल 7 अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेंसस एक्ट जो होता है 1948 का प्रोवाइड करता है एक प्लान फॉर कंडक्टिंग अ पॉपुलेशन सेंसस अलोंग विद द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेंसस ऑफिसर। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स is entrusted with the responsibility of conducting a decadal census. Later, this office was also entrusted with the task of implementation of Birth and Death Registration Act 1969. Second Backward Classes Commission, Mandal Commission 1980 estimated the other backward classes OBC population at 52%. So स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने ये कहा था कि एक्सरसाइज वाज नॉट अ फुल स्केल सेंसस, लेकिन एक ये सोशल सर्वे था जो कास्ट डेमोग्राफिक्स पे क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है। हिस्ट्री ऑफ कास्ट सेंसस इन इंडिया, कास्ट वाइज एन्यूमरेशन ऑफ द पॉपुलेशन, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन इन 1881 एंड कंटिन्यूड टिल द 1931 सेंसस। 1941 में क्या हुआ था, कास्ट बेस्ड डेटा वाज कलेक्टेड बट नॉट पब्लिश्ड। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अबेंडन कर दिया था फुल कास्ट एन्यूमरेशन को एक्सेप्ट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 it was conducted through Ministry of Rural Development, Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, Office of the Registrar General and Census Commissioner, India and State Government Union Territory Administrator। 2016 में क्या हुआ था, SECC data excluding caste data, it was finalized and published। National Indicator Framework for SDGs, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिलीज किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क को, प्रोग्रेस रिपोर्ट को 2023 में।
नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क के बारे में देखते हैं। नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क इंक्लूड्स करता है इंडिकेटर जो अलाइन करता है एसडीजी ग्लोबल इंडिकेटर्स के साथ, और ये इंक्लूड करता है दूसरे इंडिकेटर्स ऑल्सो जिन विच आर लाइक टेलर टू सूट इंडियाज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क सिमिलर टू ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, ये भी इवॉल्व कर रहा है नेचर में। एट प्रेजेंट यहाँ पे 284 इंडिकेटर्स है नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क में। 2019 में क्या हुआ था, मिनिस्ट्री ने डेवलप किया है, सर्कुलेट की है गाइडलाइन, स्टेट्स को भी दी है, वो यूनियन टेरिटरीज को दी है, ताकि जो स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क है उसका डेवलपमेंट हो सके इन रेस्पेक्ट टू स्टेट्स, राइट। ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क भी है, फ्रेम्ड हुआ है, इसको किसने फ्रेम किया है, इंटर एजेंसी एंड expert group on SDG indicators IAEG SDG composed of member states including regional and international agencies as observer, set up by UN Statistical Commission. India through MOSPI represent किया है साउथ एशिया को IAEG SDG में फॉर द टर्म 2021 to 23। इंडिया क्या था, एक मेंबर था IAEG SDG का ड्यूरिंग 15-17 एंड 17-18 दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के साथ। एट प्रेजेंट जो ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क है इंक्लूड्स होते हैं इसमें 248 इंडिकेटर्स, 231 यूनिक इंडिकेटर्स भी यहाँ पे हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक एजेंसीज की बात करें और दूसरे रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो ये रेस्पॉन्सिबल है डेटा कलेक्ट करने को और रिपोर्ट करने को ऑन दीज इंडिकेटर्स। टूवर्ड्स दिस एंडीवर MOSPI डेवलप्ड आ नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क इन 2018। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज हुआ है एनुअली, इसको रिलीज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। 4 पैरामीटर्स है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इंडिया वाज रैंक्ड एट 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज इन 2023। इंडिया ने अचीव किया है 44.4% रिप्रेजेंटेशन विमेन का लोकल गवर्नेंस में। जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका इट सीक्स टू कॉम्प्रिहेंड द सिस्टमैटिक डिसएडवांटेजेस एंड डिस्क्रिमिनेशन व्हिच वाज फेस्ड बाय गर्ल्स एंड वुमेन वर्ल्ड वाइड। 4 डायमेंशन है, पॉलिटिकल है, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड फिजिकल इंटेग्रिटी है, राइट। सो UHC सर्विस कवरेज इंडेक्स को अगर हम देखें WHO एंड वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। सो SCI ट्रैक करता है SDG 3.8.1, इंक्लूड्स करता है 4 इंडिकेटर कैटेगरीज जैसे रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ, इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, सर्विस कैपेसिटी एंड एक्सेस। इट इज मेजर्ड ऑन स्केल फ्रॉम 0 वर्स्ट होता है 100 बेस्ट होता है। 2021 में इंडिया ने स्कोर किया है डिक्लाइन टू 63 फ्रॉम 64 इन 2019। Part 2 equal report jointly prepared by United Nations Women and United Nations Development Program introduced twin indices to measure status of women's empowerment and gender equality across the world. Women's Empowerment Index फोकस करता है women पे, मेजर करता है उनकी पावर को, फ्रीडम्स को, चॉइसेस बनाने में, सीज करने में, अपॉर्चुनिटीज को लाइफ में। ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स इवेल्युएट्स करता है स्टेटस विमेन का रिलेटिव टू मेन इन कोर डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एक्सपोज करता है गैप्स इन पैरिटी बिटवीन विमेन एंड मेन। टेक्निकल टर्म डिक्शनरीज फॉर इंडियन लैंग्वेजेस, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज वर्किंग ऑन टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी इन 10 इंडियन लैंग्वेजेस अंडर रिप्रेजेंटेटेड इन लर्निंग लैंडस्केप। ये जो लैंग्वेज है विच आर ऑल्सो पार्ट ऑफ 8th शेड्यूल इंक्लूड बोडो, संथली, डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, सिंधी, मैथिली एंड संस्कृत। सो CSTT के बारे में अगर हम देखें, इस वो एस्टेब्लिश इन 1961, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हुआ था तब ये एस्टेब्लिश हुई थी। कमीशन एस्टेब्लिश हुई थी अंडर आर्टिकल 344 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ फॉलो अप ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी। ऑब्जेक्टिव क्या था, इवोल्व करना टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को सारी इंडिया की लैंग्वेजेस में। ओके तो आई थिंक यहाँ पे हमारा ये जो बुकलेट है वो भी ख़त्म हो गई है। एंड अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं, मेरी देखिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरी जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप मेरी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।